Hello dear students, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter Advanced Web Designing. In last lecture, we have completed all the CSS styles and its properties. So today we are going to study new topic in HTML and that is order list and unordered list. So let's begin. In this video, we will learn ordered list or numbered list, attributes of ordered list, unordered list or bulleted list, and attributes of unordered list. So let us see one by one. Ordered list or numbered list. What is ordered list? Order means what? We can say that it should be in order or in sequence. So what, when we can say that it is in order? When we are giving it a number or alphabets like 1, 2, 3 or A, B, C, D. Then we can say that the list is in order or we can say that it is in sequence. So हमें कब पता चलता है कि एक लिस्ट जो भी है वो एक ऑर्डर में है जब वो लिस्ट को हम लोग किसी नंबर्स में लिखेंगे या फिर अल्फाबेट्स में लिखेंगे. So that time we can say that list it is in order. Okay, means by seeing that numbers we can say that yes, it is in ascending order, it is in descending order or whatever, or random numbers, anything. So by seeing that list you will come to know that whether it is in order or not. Okay, so that is called as ordered list or numbered list. An ordered list starts with the OL tag. Now if I want to write a list which should be in order, if I want to write list in HTML which should be in order, then for that I'm going to use OL tag. Okay, what is this OL? O means ordered and L means list. So OL tag is used to write the list in order. So अगर मुझे कोई भी लिस्ट HTML में लिखना है जो सीक्वेंस में होना चाहिए या फिर ऑर्डर्स में होना चाहिए, so उसके लिए मुझे किस टैग का यूज करना पड़ेगा? OL टैग का. ओके, OL टैग का यूज करके हम लिस्ट बना सकते हैं जिसको नंबर्स बाय डिफॉल्ट आएंगे या फिर अल्फाबेट जो भी हम देंगे टाइप उस हिसाब से वो लिस्ट आने वाला है. ओके, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करेंगे? OL टैग का. An ordered list can be numerical or alphabetical. तो कोई भी ऑर्डर लिस्ट ये एक तो न्यूमेरिकल होगा या फिर अल्फाबेटिकल होगा. जैसे कि हम बोलते हैं 1 2 3 4, वो भी एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है. ABCD वो भी एक सीक्वेंस है या फिर ऑर्डर है. तो अल्फाबेट्स कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं. उसी तरह से सिंपल नंबर्स लाइक दिस 1 2 3 नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर रोमन नंबर्स भी हो सकते हैं. अब रोमन नंबर्स में भी दो पार्ट्स आएंगे, कैपिटल एंड स्मॉल. सो ये भी होता है ऑर्डर लिस्ट में. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर लिस्ट मीन्स क्या होता है. इट शुड बी इन सीक्वेंस. तो सीक्वेंस में नंबर्स आते हैं या फिर अल्फाबेट्स आते हैं. ओके, each list item starts with the li tag. हर एक लिस्ट आइटम जो भी हम लोग ऑर्डर लिस्ट में लिखने वाले जो भी लिस्ट में आइटम्स रहते हैं, यानी जैसे कि मैंने लिखा, मैंने कई फ्रूट्स के नाम लिखे 1 2 3 4 डाल के, तो फिर 1 नंबर पे फ्रूट लिखा है मैंगो, 2 नंबर पे फ्रूट लिखा है एप्पल. सो ये जो मैंने एप्पल मैंगो ये जो लिखा है ये मुझे कहाँ पे लिखना होता है? ये होते हैं लिस्ट आइटम. और लिस्ट आइटम मुझे कहाँ पे लिखना रहता है? li टैग के बाद. ओके, for writing that items I have to use which tag? Li tag. L means list and I means item. So whatever item you want to write for the list or for the order list, we have to write which tag? Li tag. Okay, see in this case only I will tell you what is li and what is ol. See, OL, when we declare OL, when we are going to give OL, that time this sequence is going to come by default. This is a by default sequence of OL tag. So this is going to come because of this OL tag.
Okay, but whatever this item is written, this data is written, this an unordered list starts with OL tag, an ordered list can be numerical or alphabetical. So all this data, whatever list we are making for this numbers, this is called as list item. Okay, this one is one list item, this is the another list item, this is the another list item. So this is what list item. So this we have to write where? In front of li tag. Okay, so within li tag we can say, not in front of li tag, we have to write within li tag. Okay, by default the list item of OL is numbers. So by default, what is the list item of OL? OL by default, the type of OL is numbers, that is 1 2 3 4. Okay, and the other types that we will see next, but other types we can give by using type. Okay, by using type attribute in front of OL. But by default, what is the type of OL? It is numbers. So what is ordered list? Ordered list means, क्या होता है ordered list? अगर मुझे कोई भी लिस्ट एक सीक्वेंस में देना है, या फिर नंबर्स में देना है, या फिर ऑर्डर में देना है, तो मुझे किस टैग का यूज करना पड़ता है? OL टैग का यूज. ओके, और लिस्ट कैसे रहता है? न्यूमेरिकल भी रह सकता है या फिर अल्फाबेटिकल भी हो सकता है. फिर जो भी आइटम्स हम लोग लिखने वाले हैं वो नंबर्स के सामने, तो वो आइटम्स हम लोग किस में लिखते हैं? li टैग के अंदर लिखते हैं. ओके, विद इन li टैग. ओके, मीन्स li टैग के बीच में लिखा जाता है. स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग रहता है li का, उसके बीच में हम लोग जो टेक्स्ट लिखेंगे वो होता है लिस्ट आइटम. देन बाय डिफॉल्ट OL का टाइप कौन सा होता है? नंबर्स, मीन्स दिस 1 2 3 4. By default, what is the type of OL? It is numbers. So this is all about the ordered list. Next we will see attributes of ordered list. Attributes of OL tag. This all are the attributes of OL tag. These are the values and this is the description of the attributes. Now let us see it one by one. First attribute is type. So type has 5 values. They are 1, capital A, small a, capital I, small I. So what are these values? We will see type is equal to 1. The list items will be numbered with numbers. What this means? This says that if you want the list to be displayed in numbers, then for that you have to write type is equal to 1. Even if you're not writing type is equal to 1, or you're not writing any attribute called as type, then by default OL will contain which list? It will be containing numbers list only. Okay, so अगर मैंने टाइप एट्रीब्यूट लिखा ही नहीं OL टैग के सामने, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइप आने वाला है? बाय डिफॉल्ट टाइप इज इक्वल टू नंबर्स का ही आएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6. ओके, बिकॉज इट इज अ बाय डिफॉल्ट टाइप, सो the numbers are going to get displayed for the list. Then next, type is equal to capital A. If you want the list should contain capital alphabets like capital A, capital B, capital C, then for that you have to write type is equal to capital A. Then next one, type is equal to small a. Similarly, if you want that your list should contain small alphabets like A, B, C, D, then for that we have to write type is equal to small a. Okay, then type is equal to capital I. Capital I is what? It is nothing but the Roman numbers. So this is Roman number 1. This I is nothing but Roman number 1. Okay, if you want that your list item should contain capital Roman numbers, then we have to write type is equal to capital I. Similarly, if you want that your list should contain small Roman numbers, then you have to write type is equal to small I. Okay, so सबको समझा ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइप होता है OL के लिए? हमेशा 1 होता है. अगर ये हम नहीं लिखेंगे OL के लिए तो बाय डिफॉल्ट जो भी लिस्ट रहेगा उसको नंबर्स ही मिलेंगे.
ओके। देन अगर मुझे लिस्ट कैपिटल अल्फाबेट में चाहिए, एबीसीडी में, कैपिटल एबीसीडी में, तो मुझे टाइप इज इक्वल टू कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर मुझे लिस्ट स्मॉल एबीसीडी में चाहिए तो मुझे टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए लिखना पड़ेगा। अगर मुझे लिस्ट रोमन नंबर्स में चाहिए, वो भी कैपिटल रोमन नंबर्स चाहिए, तो मुझे टाइप इज इक्वल टू कैपिटल आई लिखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मुझे लिस्ट रोमन नंबर्स में चाहिए लेकिन स्मॉल रोमन नंबर्स में चाहिए, तो मुझे टाइप इज इक्वल टू स्मॉल आई लिखना पड़ेगा। ओके। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज रिवर्स्ड। रिवर्स्ड एंड द वैल्यू इज रिवर्स्ड मीन्स मुझे सिर्फ लिखना पड़ेगा ओएल के सामने रिवर्स्ड। ओके, ओएल रिवर्स्ड। This attribute specifies that the items of the list are reversed. नाम से ही पता चलता है रिवर्स मीन्स व्हाट, उल्टा, नंबर्स उल्टे चाहिए मुझे। जैसे कि अभी यहाँ पे है 1 2 3, रिवर्स क्या हो जाएगा, इस नंबर का रिवर्स क्या हो जाएगा 3 2 1। अगर मुझे ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, जैसे कि हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए ये यूज हो सकता है, राइट। जैसे कि मुझे डिसेंडिंग नंबर्स चाहिए, अगर मुझे बड़े से छोटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज रिवर्स्ड। ओके, तो रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर्स बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद दूसरा वाला, फिर दूसरा, ऐसा इसी तरह से वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, पूरे उल्टे हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स्ड। देन लास्ट एट्रीब्यूट इज स्टार्ट एंड द वैल्यू इज नंबर। Specifies the starting number of the first item in an ordered list. Now, what is this actually? See, यहाँ पे वैल्यू नंबर दिया है, तो ये सिर्फ किसके लिए, ये एट्रीब्यूट किसके लिए वर्क होगा, सिर्फ नंबर्स के लिए। ये अल्फाबेट्स के लिए या रोमन नंबर्स के लिए नहीं होता है। ये एट्रीब्यूट सिर्फ 1 2 3 4 के लिए ही यूज होता है। ओके, तो स्टार्ट नंबर मीन्स व्हाट, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 1 आएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग नंबर हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर मुझे स्टार्टिंग नंबर 1 की जगह 10 करना है, 11 करना है, या कोई भी नंबर करना है, 1 को छोड़ के अगर मुझे स्टार्टिंग नंबर कोई और चाहिए, तो दैट टाइम आई एम गोइंग टू यूज विच एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट। देन इज इक्वल टू नंबर मीन्स जिस नंबर से मुझे लिखना है। जैसे कि अगर मुझे मेरा फर्स्ट आइटम लिस्ट में 10 नंबर से चालू चाहिए या 11 से चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 11। तो मेरे नंबर्स किस से चालू हो जाएंगे, 11 से। ओके, फिर 11 से ही सब लिस्ट आएगा, 11 12 13 14 लाइकवाइज। ओके, सो दिस एट्रीब्यूट स्टार्ट इज इक्वल टू नंबर, this attribute is going to be used only for number type. ओके, ये किसी और के लिए नहीं चलेगा, ये सिर्फ नंबर के टाइप के लिए ही चलता है। So I hope this all attributes are clear to you. Next we are going to see the coding for OL tag. Let us see one coding. One question is here. Write HTML code to display list of World Cup teams. Use numbers starting from 1 for list. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे एक लिस्ट डिस्प्ले करो वर्ल्ड कप टीम्स का। वर्ल्ड कप पता है ना, क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की बात कर रही हूँ। सो हमें वर्ल्ड कप टीम्स के नाम डिस्प्ले करने हैं कंट्रीज के। ओके, तो वहां पे यूज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो नंबर्स से आना चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 में लिस्ट आना चाहिए पूरा। तो उसके लिए कोडिंग कैसा लिखेंगे, देखो। सो सी, दिस इज द कोडिंग फॉर दिस क्वेश्चन। Here, I have given the title as World Cup teams. So this World Cup teams, it is going to be displayed in the output where in the blue colors browser. Okay, जो blue color का रहता है ना ब्राउजर में, वहां पे ये World Cup teams लिख के आएगा। Okay, that we will see in the output. Next, heading is list of teams for World Cup. Okay, तो जो भी टीम्स वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुए हैं या फिर जो भी है उसका नाम डिस्प्ले करो। तो मुझे चाहिए नंबर्स में, तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ ओएल टैग लिखा। ओएल के सामने में मैंने कोई टाइप लिखा है क्या, नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नंबर्स में चाहिए और बाय डिफॉल्ट ओएल का टाइप क्या होता है, नंबर्स, इसलिए मैंने टाइप नहीं लिखा। अगर आप लोगों ने ओएल के सामने टाइप इज इक्वल टू 1 लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी रॉन्ग आने वाला नहीं है, तो भी वही सेम आउटपुट आएगा जो इसके लिए आने वाला है। ओके, सो लिस्ट आइटम, पहला आइटम देखो, जो आइटम्स मीन्स जो नंबर के सामने नाम आने चाहिए उसको कैसे लिखते हैं वो देखो।
li टैग के अंदर लिखा जाता है। ओके, पहला li क्या है, इंडिया। ओके, फिर मैंने li को क्लोज कर दिया, फिर मैंने सेकेंड आइटम लिखा ऑस्ट्रेलिया, फिर li को क्लोज किया। देन नेक्स्ट आइटम साउथ अफ्रीका, क्लोज li, नेक्स्ट आइटम न्यूजीलैंड, क्लोज li, लाइकवाइज पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। इस तरह से मैंने जितने भी वर्ल्ड कप टीम्स चाहिए मुझे उनके सबके नाम लिखे हैं। ओके, फिर मैंने OL को क्लोज कर दिया। जब स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होता है तो उसे कौन सा टैग कहते हैं, कंटेनर टैग। तो OL क्या है, कंटेनर टैग है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो पेड टैग है। उसी तरह से LI भी कंटेनर टैग है क्योंकि उसको भी क्लोजिंग टैग है, इसलिए वो भी कंटेनर टैग या फिर पेड टैग होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोडिंग, हाउ टू राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो समझा कैसे लिखा जाता है, OL लिखोगे, फिर LI, जो भी नाम उनके सामने आने चाहिए नंबर्स के सामने, उसको इस तरह से लिखा जाता है। So let us see the output so that idea will be clear to you. So see, this is the output for that question, that coding. Okay, so see, जो मैंने हेडिंग, सबसे पहले मैंने जो वर्ल्ड कप टीम्स लिखा था टाइटल में, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये ब्लू कलर का ब्राउजर नहीं है मेरा, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखोगे तो आपको ब्लू कलर का दिखेगा। ब्राउजर मीन्स यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ये वर्ल्ड कप टीम्स लिख के आया। ओके, देन H1 में हम लोग ने क्या लिखा था, लिस्ट ऑफ टीम्स फॉर वर्ल्ड कप, तो ये आया वो H1। फिर ये लिस्ट आ गया, देखो OL लिखा था सिर्फ, इसलिए 1 2 3 4 टाइप आ गया और ये सारे नाम्स उसके सामने आ गए। समझा, ये सारे लिस्ट आइटम्स है, ये जो यहाँ पे उसके सामने डिस्प्ले हो गए। Okay, so this is all, it is very simple. Now next we will see OL coding by using the type and the reverse and start attribute. Then again the idea will be clear to you. Okay, so let us see the next coding. See, this is the coding where I'm going to write list of vegetables and list of fruits. I'm going to display, means I want the list of vegetables as well as a list of fruits. Okay, मैंने ये कोडिंग लिखा है जहां पे मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, और उसमें मैंने क्या किया है कि वेजिटेबल्स के जो भी टाइप हम लोग ने दिया है वो रिवर्स में चाहिए, वो रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए कोडिंग लिखा है। फिर मैंने और उसी इसमें फ्रूट्स के नाम लिखे हैं कि उसका स्टार्टिंग नंबर 21 आना चाहिए, ऐसा लिखा है। ओके, सो सी, टाइटल में हम लोग ने क्या लिखा है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर मैंने H2 यूज किया है, अंडरलाइन लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। तो लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स ये H2 में आने वाला है और उसको अंडरलाइन भी आएगा। उसी तरह से मैंने H3 लिखा है OL के सामने। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि ये आपको बड़े मीन्स बड़े फॉन्ट्स में दिखना चाहिए, बिग फॉन्ट्स में दिखना चाहिए, इसलिए मैंने H3 का यूज किया है। यानी ये जो भी आइटम्स आने वाले हैं वो किस फॉन्ट में आने वाले हैं, H3 फॉन्ट में। ओके, सो फिर OL टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A, यानी ये जो अल्फाबेट्स में आने वाले हैं, ये 1 2 3 4 में आने वाला है क्या, नहीं, ये जो लिस्ट आएगा ये किस में आने वाला है, हमारा कैपिटल ABCD में आएगा। उसी तरह से आपको अगर स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे स्मॉल a लिखो, आपको अगर रोमन 1 चाहिए तो आप रोमन 1 लिखो, कैपिटल का रोमन 1 या फिर स्मॉल का रोमन 1। ओके, फिर वो जो भी टाइप चाहिए वो इसके सामने लिखना पड़ता है। और एक एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है, रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मीन्स क्या हो जाएगा, अभी ये कितने आइटम्स लिखे हम लोगों ने, 1 2 3, तो ABC आने वाला है, ABC आएगा लेकिन रिवर्स्ड है। रिवर्स है मीन्स क्या हो जाएगा, कैसे नंबर आएंगे, ब्रिंजल को 3 आएगा, लेडी फिंगर को, सॉरी नॉट 3, C आएगा, क्योंकि ABCD यूज कर रहे हैं। तो ब्रिंजल को कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट आएगा, C, लेडी फिंगर को B, कैबेज को A। ओके, ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। देन उसी इसमें हम लोग ने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स भी यूज किए हैं। तो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को मैंने OL स्टार्ट इज इक्वल टू 21 दिया है, यानी ये स्टार्ट एट्रीब्यूट किसके लिए होता है, सिर्फ नंबर्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी मैंने टाइप नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइप रहेगा, 1 2 3, और उसका स्टार्टिंग नंबर कौन सा आना चाहिए, 21। तो कैसे आएगा हमारा आउटपुट, 21 ऑरेंज, 22 पाइनएप्पल, 23 वाटरमेलन। ओके, नाउ लेट अस सी द आउटपुट।
Now see, this is the output. Title vegetables and fruits यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. फिर H2 में हम लोगों ने लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स लिखा था, अंडरलाइन किया, वो अंडरलाइन भी हो गया. और ये टाइप हम लोगों ने क्या दिया था, ए बी सी, और इसको मैंने और एक एट्रीब्यूट यूज किया था, रिवर्स. तो ये सब हो गए रिवर्स यानी उल्टे. सी पहले, फिर बी, फिर ए. तो ब्रिंजल थर्ड पोजीशन पे है, लेडी फिंगर सेकेंड और कैबेज फर्स्ट. सो इस तरह से ये रिवर्स हो गया. नेक्स्ट मैंने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दिए थे. फिर उसमें मैंने क्या दिया था, स्टार्ट इज इक्वल टू 21. तो नंबर्स कहाँ से शुरू हो गए, 21 से. 21 ऑरेंज, 22 पाइनएप्पल, 23 वाटरमेलन. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. बहुत इजी है ओएल. उसी तरह से यूएल भी बहुत इजी है. ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग आपने यूज किया रहेगा ना, जब हम लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं तभी वो लिस्ट आता है, बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट, वही है ये सेम. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अनऑर्डर्ड लिस्ट. Unordered list or bulleted list. Unordered list means what? From the name itself, we can say that the list which is not in order. Unordered list क्या होता है, वो लिस्ट जो ऑर्डर में नहीं है. ओके, सो जो लिस्ट सीक्वेंस या ऑर्डर में नहीं रहता है उसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये आइटम पहले आएगा, ये आइटम दूसरा आएगा, ये आइटम तीसरा आएगा या लास्ट आएगा. ऐसा हम उसमें नहीं बोल सकते. उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, जहाँ पे हम लोग बुलेट्स यूज करने वाले. जैसे कि कभी हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं, कभी सर्कल यूज करते हैं या एरो यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बुलेट. ओके, तो इंस्टेड ऑफ नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स हम लोग बुलेट्स यूज करते हैं, इसलिए उसको हम लोग बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं. An unordered list starts with the UL tag. So, for using unordered list, which tag we are going to use? We are going to use UL tag. U means unordered, L means list. So, for unordered list, which tag we are going to use? UL. For ordered list, which tag we were using? OL. Similarly, for unordered, UL. An unordered list can be any bullets. So unordered list में कोई भी bullets हम लोग यूज करने वाले. यहाँ पे कोई numbers या alphabets हम लोग यूज नहीं करते. We are going to use only bullets in unordered list. जैसे कि square बोला मैंने, circle, disc, arrows, ये सब bullet है. ओके, हम लोग कौन से यूज करने वाले हैं वो हम देखेंगे. लेकिन जो आपके कंप्यूटर्स में हम लोग एमएस वर्ड करते हैं, जब वो बुलेट्स दिखते हैं उसमें हम लोग ने ये देखा रहेगा, एरो, सर्कल, स्क्वायर्स, राइट. तो वो सब क्या होते हैं, बुलेट्स होते हैं. ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द एलाइड टैग. सो जिस तरह से ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम लिखने के लिए एलाइड टैग यूज होता था, उसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी हम लोग विच टैग यूज करने वाले हैं, allied tag. Okay, for ordered list also and for unordered list also, which tag we use for listing item, allied tag. By default, the list item of UL is small black circle, that is disk. So what is the by default type of unordered list? Means if you are not going to use any type for unordered list, then which will be the by default type for UL? By default is disk, that is small black circle. See here, this is called as a disk. ये जो हमें दिख रहा है इसे डिस्क बोलते हैं. यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर में दिख रहा है, लेकिन जब आप यूज करोगे सो इट विल बी इन ब्लैक कलर. ओके, सो इसे हम लोग डिस्क बोलते हैं, सर्कल नहीं बोलते. क्यों सर्कल नहीं बोलते हैं? सर्कल इससे अलग होता है. सर्कल जो होता है वो हॉलो होता है, मीन्स आर पार होता है. ये जो बीच में ब्लैक कलर है ना, ये जो बीच में कलर है ये सर्कल को, वो कलर नहीं होता है, उसे हम लोग सर्कल कहते हैं. Okay, so this is all about the unordered list. So unordered list means क्या होता है, जो लिस्ट हमें ऑर्डर में या सीक्वेंस में नहीं चाहिए उसके लिए हम लोग
अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यूएल टैग लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट यूएल टैग डिस्क होता है और यूएल टैग में हम लोग बुलेट्स यूज करने वाले हैं। फिर जो भी आइटम हम लोग बुलेट्स के लिए लिखते हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए लिखेंगे वो हमेशा li टैग के अंदर होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द एट्रीब्यूट्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। Attributes of UL tag. Here, there is only one attribute, that is type, values of that type, and description. So let us see the type. Type is equal to disk or circle or square. So only three types we are going to use. That is disk, circle, and square. ये सिर्फ 3 bullets हम लोग use करने वाले हैं. Okay, disk, circle, square. Disk कैसे दिखता है? ये black circle. Okay, then circle hollow दिखेगा, means without color. Then square. So square आपको पता है कैसे रहता है. So ये है इसके symbols. Use style CSS instead of type attribute in HTML5. इसके कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोग HTML5 का अर्लियर वर्जन यूज करें, अगर आप लोग HTML5 नहीं यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, तो आपको सिंपली टाइप लिखना है और यूएल टाइप इज इक्वल टू जो भी आपको टाइप चाहिए, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, जो भी चाहिए वो. लेकिन अगर आप लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट दिस स्टाइल. ये CSS का प्रॉपर्टी है. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज स्टाइल. Okay, you will write style is equal to list, style type, disk, circle, square, none. जो भी आपको टाइप चाहिए वो आप यूज कर सकते हो. किसके लिए? HTML5 में. अगर आप लोग कोडिंग HTML5 में कर रहे हो, देन ऐसे लिखना पड़ता है. तभी आपको एट्रीब्यूट टाइप नहीं लिखना है, तभी आपको लिखना है स्टाइल. ओके, देन disk means this is a by default type. This is a by default type. So even if you are not writing this, this is going to come by default. Then next is circle. If you want your list should contain circle bullet, then you are going to write like this. If you want your bullet should be square, then you have to write this type. Then none. None means what? The list items will not be marked. Whatever list you want, if you don't want any bullets to be displayed in front of the list, then that time you are going to write list style type none. Okay, अगर आपको list item के सामने कोई भी bullet का sign नहीं चाहिए, तो हमें क्या देना पड़ेगा? list style type none. Okay, so this is all about the attributes of UL tag. Here only one attribute is there, and that is type, or we can say style. Okay, if you're using earlier version of HTML5, then write attribute type, and if you're using HTML5 version, then you have to write style. Okay, so this is all about the attribute. Now let us see the coding for UL tag. See, this is the coding for unordered list. Here, what I have done, I have written title unordered list, then h1 underline topics of practical. So output में क्या आने वाला है? Topics of practical, it will be in heading level 1 with underline. Okay, then UL. Now see, here I am simply using UL. I am not writing any type or style. Then what will be the by default type or style? It will be disk. So ये जो भी लिस्ट है उसके सामने डिस्क आने वाला है, ब्लैक सर्कल आने वाला है. ओके, सो कौन सा नाम आएगा उसके सामने? एडवांस वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद GST, डेटाबेस कंसेप्ट्स यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस. ओके, सो ये 3 नाम वो सर्कल के सामने, डिस्क के सामने आने वाले हैं. फिर नेक्स्ट मैंने दिया है H1U टॉपिक्स ऑफ थियरी. ये भी H1 में आने वाला है, इसको भी अंडरलाइन आने वाला है. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? UL टाइप इज इक्वल टू नन. अभी देखो यहाँ पे मैंने टाइप इज इक्वल टू नन यूज किया है. ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने HTML5 वर्जन यूज नहीं किया है, तो अगर आपने HTML5 वर्जन यूज किया है तो कैसे लिखना है उसका कोडिंग भी हम लोग देखने वाले हैं. लेकिन ये विदाउट मीन्स आई एम यूजिंग योर अर्लियर वर्जन ऑफ HTML5, देन हाउ टू राइट द कोडिंग. ओके, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू नन लिखा है,
तो ये कैसे आएगा, ये लिस्ट ऐसे लिख के आएगा, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये तीनों भी एक के नीचे एक आने वाले, लेकिन इसके सामने कोई भी बुलेट का सिंबल या साइन नहीं आएगा। सो चलो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखेगा। सी दिस इज द आउटपुट। यो सी, जो भी हम लोग ने टाइटल में लिखा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे आ गया। टॉपिक्स ऑफ प्रैक्टिकल, सी दिस बाय डिफॉल्ट टाइप इज दिस, तो ये ब्लैक सर्कल्स में आ गए। ओके, देन टॉपिक्स ऑफ थियोरी, यहाँ पे मैंने यूएल टाइप में नन लिखा था, तो नन मीन्स कोई भी साइन नहीं आया है। लिस्ट में आया बराबर, सब एक के नीचे एक आए लिस्ट इसमें, लेकिन इसके सामने कोई भी बुलेट्स नहीं है। ओके, सो दिस इज नन। Now let us see the next coding where I'm going to use style attribute. See, this is the another coding for unordered list. You see I'm using the style attribute. Okay, this will work for HTML5. See, title is unordered list. In body, I'm using H1, U, cold drinks. सो कोल्ड ड्रिंक्स, आउटपुट में कोल्ड ड्रिंक्स H1 में आएगा और उसको अंडरलाइन आने वाला है। ओके, देन सी यूएल स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल डैश टाइप कोलन स्क्वायर। तो ये जो आउटपुट आएगा, ये जो लिस्ट आने वाला है, इसके सामने क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और क्या आएगा फिर, कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, ये सब आएंगे। ओके, स्क्वायर आएगा और उसके सामने ये लिस्ट मीन्स ये आइटम्स कोल्ड ड्रिंक्स आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने क्या लिखा है, H1 अंडरलाइन हॉट ड्रिंक्स यानी गर्म ड्रिंक। कौन सा है, इसमें मैंने स्टाइल क्या यूज किया है, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। तो अब जो भी नाम आएंगे, जो भी हॉट ड्रिंक्स आने वाले हैं, जैसे कि कॉफी, मिल्क, टी, ये सब के सामने कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा बुलेट साइन आने वाला है, सर्कल। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखता है। तो देखो, ये है उस क्वेश्चन का वो कोडिंग का आउटपुट। वहां पे टाइटल भी अनऑर्डर्ड लिस्ट दिया था, तो टाइटल यहाँ पे आ गया। फिर कोल्ड ड्रिंक्स, और ये है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या क्या लिस्ट आया है कोल्ड ड्रिंक्स का, कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट। तो ये देख के पीने का मन हो रहा है ना सबका, मेरा भी हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हॉट ड्रिंक्स। हॉट ड्रिंक्स के सामने हम लोगों ने कौन सा टाइप यूज किया था, सर्कल। तो ये होता है सर्कल, जो ब्लैक कलर में नहीं होता है, यानी ये हॉलो होता है, आर पार रिंग के जैसा दिखता है, राइट। तो देखो यहाँ पे हॉट ड्रिंक्स क्या है, कॉफी, मिल्क, टी। तो इस तरह से हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लिया। ओके, सो now we have completed both ordered list and unordered list. I hope that all this ordered list and unordered list is clear to you. Practice it so that it will be clear to you. See all the attributes and types so that all things will be clear to you. In next lecture, we will see definition or description list. Okay, till then, you have to practice and study well. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.